1903 से सिविल एविएशन का इतिहास दुनिया में शुरू ही होता है। लेकिन उसके पहले सिविल एविएशन में हम लोगों ने ये मान लिया था कि सिविल एविएशन के जनक के रूप में, फादर के रूप में हम राइट ब्रदर्स को कंसीडर न करके ओटो लिलियंथल को कंसीडर करते हैं, जो ग्लाइडर के जरिए दुनिया में सबसे अधिक मात्रा में और अधिक दूरी तक सफल उड़ान भरने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किए थे, जर्मन एविएटर, और ये थे ओटो लिलियंथल। तो ये ओटो लिलियंथल जो जर्मन एविएटर है, इसी को हम दुनिया का प्रथम एविएटर मानते हैं और इसको सिविल एविएशन के फादर के रूप में कंसीडर किया जाता है। ये जर्मन स्कॉलर था। वर्ल्ड में सिविल एविएशन के नाम पर जो इतने बड़ा इंडस्ट्री आज क्रिएट हुआ है, इस इंडस्ट्री के क्रिएशन में सिविल एविएशन का जो रूप इस्तेमाल हो रहा है, उसका पहला रूप दुनिया ने देखा था 1903 में, जब राइट ब्रदर्स ने, जो यूएसए के दो एविएटर थे, उन्होंने पूरी सक्षमता के साथ, पूरे कंट्रोल के साथ लॉन्ग डिस्टेंस तक हवाई जहाज का उड़ाकर प्रदर्शन किया और अपने नाम से यह रिकॉर्ड दर्ज कराया कि 1903 में ये राइट ब्रदर्स ही थे जिन्होंने सबसे पहले सिविल एविएशन, नागरिक उड्डयन के इतिहास को शुरू किया। उसके बाद आप देखते हैं कि जस्ट 8 ईयर आफ्टर, इन द ईयर ऑफ 1911, civil aviation service had been initiated in India by the British government when a flight of British India took off from Allahabad and landed into Nancy, crossing the Yamuna River, covering the 9.7 kilometer distance. It was the first flying on the soil of India or in the air of India. That was held in 1911. But the most important, significant, important step in the development of civil aviation in India was taken in 1932 by JRD Tata, when an aircraft of Tata took off from Karachi and landed in Mumbai carrying large scale mailboxes. So it was the initiation of civil commercial aviation in India that was took place in 1932 by the initiative taken by JRD Tata. उससे पहले आप ये जान चुके हैं कि सिविल एविएशन का इंडिया में जो शुरुआत हुआ है, जो इनिशिएशन हुआ है, जो बिगनिंग हुआ है, वो 1911 में हुआ है, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक एयरक्राफ्ट इलाहाबाद से टुक ऑफ करता है और वह नैनी में लैंड करता है और वो भी मेल बॉक्स को ही कैरिंग करता है। अब ये जो 1911 का इतिहास मैं आपको बता रहा हूं कि इंडिया में फर्स्ट फ्लाइंग इंसिडेंट है और ये मेल बॉक्स को कैरी कर रहा है, इलाहाबाद से नैनी पहुंचा रहा है। इसको इंटरनेशनल लेवल पर फर्स्ट एयर मेल सर्विस भी माना जाता है। ये वर्ल्ड में भी पहला मेल सर्विस है जो वायु सेवा के द्वारा संपन्न की गई है। तो 1911 को याद रखें, 1932 को याद रखें, 1903 को याद रखें, जहां से सब कुछ शुरू हो रहा है। और उससे पहले एविएटर के रूप में, सिविल एविएशन के हिस्ट्री के जनक के रूप में आप याद रखें ओटो लिलियंथल को। यू मस्ट बी अवेयर दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द हिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इन इंडिया took place in the year of 1953. When the government of India, Indian Parliament, passed an act in order to nationalize the air commercial service of India. My dear students, as you know that, then major 8 air service provider companies in India, Air India, Airways, National Airways, Indian National Airways, Indian National Airways, Kalinga Airways, कलिंगा एयरवेज, भारत एयरवेज,
Deccan Airways, Deccan Airways and Himalayan Airways. Himalayan Airways. These all 8 private civil commercial air service provider companies are nationalized into 2 entities. First, Air India or Indian Airlines. My dear students, you must be aware, in the year of 1953, all private sector air civil aviation service provider companies had been nationalized and emerged as 2 major enterprises of air services, Air India and Indian Airlines. Indian Airlines was designated to domestic services, services including neighbor countries, such as flight from Indian cities to Kathmandu to Dhaka, such type of neighboring and all domestic services which connects 80 major Indian cities. Services being provided by Indian Airlines or Air India was designated to international air services. Students, next I want to make you aware about the regularization of civil aviation in India. First of all, I want to make you aware about the Civil Aviation Act passed by British India in 1934 that was amended in 1937. The Civil Aviation Act of 1934, the Civil Aviation Act of 1934 that was largely amended in 1937 has been used as the platform or base for the regularization of civil aviation in India on broad level, even in the days of globalization. Now, the Indian civil aviation industry is ranked third after the USA and China. USA contributes about 20% of world civil aviation, or China constitutes 16%. Being third, the data of India is low, only 4.5% of world civil aviation is executed by India. But we are the third in all over world. India ranked third in the market of civil aviation after US and China. Next we have to move about the new age of private aviation, civil aviation in India. That was opened when India get globalized in the year of 1991. My dear students, जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में पहले प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, टाटा ग्रुप के द्वारा ही इंडिया में सिविल एविएशन का शुरुआत किया गया।
फिर बहुत सारे हमने आपको बताया कि लगभग 8 बड़ी कंपनियां इंडिया में सिविल एविएशन प्रोवाइड कर रही थी आज़ादी के समय तक। लेकिन आफ्टर द इंडिपेंडेंस इन द ईयर ऑफ 1953, इंडिया और द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया pass an act in order to nationalize the civil aviation service, and these 8 companies merged, reflected into only 2 enterprises, Air India and Indian Airlines. My dear students, now you must be aware about the private players in civil aviation in India once again, when India had been globalized in the year of 1991. तो एक बार फिर इंडिया में प्राइवेट निजी विमान सेवा के लिए अवसर खुल गए। और यहाँ आपको यह जानना चाहिए कि इस बार जो वेस्ट, ईस्ट एंड वेस्ट इज द फर्स्ट private sector company to provide private civil aviation service in India in its second phase. फर्स्ट फेज आपने देखा था 1932 में, वो भी निजी लेवल पर था, टाटा के द्वारा हुआ था। बाद में फिर 8 बड़ी कंपनियां इंडिया में सिविल एविएशन की सर्विस दे रही थी, लेकिन सबको नेशनलाइज कर लिया गया था 1953 में। और 1991 में एक बार फिर से प्राइवेट प्लेयर को निजी विमान सेवा को अनुमति मिली। और इस बार जो सबसे पहला प्लेयर था प्राइवेट सेक्टर सिविल एविएशन सर्विस प्रोवाइडर के रूप में, वो था ईस्ट एंड वेस्ट। इसके बाद आपको ये जानना चाहिए कि आज के दौर में बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स सिविल एविएशन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वेरियस प्राइवेट कंपनीज has been providing civil aviation services in India, such as SpiceJet, Kingfisher, Akash Air, Indigo, and Indian Airways Express. At last, you must be aware that Air India, that was constituted by the Aircraft Act of India 1953, the disinvestment policy of Government of India. Some year before, once again, the leading aircraft service provider, public sector company of India, Air India, which become a white elephant for the government, too hard to maintain. At last it was decided the process of de-investigation should be executed in the matter of Air India, or at present it has been being operated once again by the Tata Group of Industries. My dear student, so it is the history of civil aviation in India. The civil aviation industry of India is now one of the most fast growing industry of the world, ranked third in the world aviation industry, contributing only 4%. The first contributor is United States of America, 18%, and second is China, 17.6%. Being third, India contributes only 4.2%. In the domestic market of India, you can see the market is completely dominated by 2 major companies, that are Air India and Indigo. Air India dominates 23.6% of the Indian civil aviation market, while Indigo dominates 17.6% of Indian civil aviation market. My dear students, now the time has come to know about the Boeing.
बोइंग इज द फर्स्ट एयरक्राफ्ट, रॉकेट, सैटेलाइट, मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफ द यूएसए। तो बोइंग के बारे में पहली जानकारी ये मिली कि ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का सबसे बड़ा मल्टीनेशनल एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी है जो सैटेलाइट, रॉकेट, स्पेसक्राफ्ट आदि का निर्माण करती है। ये यूएसए का फर्स्ट है और वर्ल्ड का फोर्थ कंपनी है। वर्ल्ड में चौथी सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट, रॉकेट, मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है बोइंग। ये कंपनी स्टेब्लिश हुआ था 1916 में। इसका जो मुख्यालय है वो है सिएटल में, जो वाशिंगटन डीसी के नियर अबाउट ही है। तो दोस्तों हमने आपको ये बताया कि बोइंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट, आउटस्टैंडिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एयरक्राफ्ट, रॉकेट, मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग मल्टीनेशनल कंपनी है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में तो फर्स्ट रैंक है लेकिन वर्ल्ड में इसका चौथा रैंक है। और इसका स्थापना हुआ था 1916 में, 1916 में। मतलब कि लगभग ये 108 साल पुरानी कंपनी है, 108 ईयर ओल्ड। और इसके पास दुनिया में सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट बनाने का रिकॉर्ड रहा है। इसका मुख्यालय बताया कि सिएटल में, वाशिंगटन डीसी के नियर अबाउट है। दैट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय विलियम बोइंग। विलियम बोइंग was the founder, establisher of the Boeing company in 1916. Its headquarters is situated in Seattle, Washington, DC. और this is the fourth largest rocket, missile, aircraft manufacturing company of modern world and first in United States of America. My dear students, इसी बोइंग कंपनी का जो फ्लाइट था 787 और ये 8th जनरेशन का था, जो एयर इंडिया का फ्लाइट नंबर, एयर इंडिया का फ्लाइट नंबर 171 था। ये बोइंग के द्वारा ही बनाया गया 787 का 8th जनरेशन एयरक्राफ्ट था। ये 125,000 लीटर जेट फ्यूल और 242 पैसेंजर्स इंक्लूडिंग क्रू मेंबर्स लेड बाय सुमित सभरवाल इलाहाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया था लंदन जाने के लिए, लेकिन टेक ऑफ के ठीक तुरंत बाद ही यह मात्र 400 फीट एल्टीट्यूड ऊंचाई पर एकाएक पावर लैप्स कर गया। इन्वेस्टिगेशन से और ब्लैक बॉक्स के रीडिंग से जो प्रारंभिक सूचना मिल रही है उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि जो मेन पायलट थे कैप्टन सुमित सभरवाल, उन्होंने एटीसी, जैसा कि आप जानते हैं एयर ट्रैफिक कंट्रोल, वो ये सूचना दिया कि मे डे, उन्होंने 3 बार लिखा है मे डे बोला है। इसका मतलब होता है कि बहुत इमरजेंसी है, जल्दी मदद करिए, बहुत इमरजेंसी है, जल्दी मदद करिए। इसका कोड है मे डे। तो उन्होंने मे डे किया है। उसके बाद कहा है कि लूजिंग पावर। उसके बाद उन्होंने कहा है कि नो थ्रस्ट, और उसके बाद कह रहे हैं अनएबल टू
लिफ्ट। और ये मैसेज आता है एटीसी को, किससे? फ्लाइट 7878 से, जो एयर इंडिया का फ्लाइट नंबर 171 है, जो इलाहाबाद से टेक ऑफ किया है लंदन जाने के लिए। उसके जो सीनियर पायलट हैं वो एटीसी को ये सूचना देते हैं, लेकिन एटीसी इन सूचनाओं को लेकर उनसे कोई बात कर सके इसके पहले ही प्लेन क्रैश हो जाता है। ये सब कहने के मात्र कुछ सेकंड में ही, within 4 to 6 or 7 seconds, the plane is completely collided with the roof of a hostel of medical student, where, as media is reporting, 75 medical students are also died, and 242 passengers including crew members had been died, surviving only one Ramesh Kumar Biswas, the occupant of seat number 11, AI 11 सीट पर जो थे रमेश कुमार विश्वास, वो मात्र एक जीवित व्यक्ति बचे हैं। और प्लेन में सारे क्रू मेंबर के साथ सारे पैसेंजर मारे गए थे। इसके बाद पूरे देश और दुनिया में दो टर्म बहुत चर्चा में आया, जिसके एकात्मिक पहलू को हमने आपके सामने रखा कि आने वाले फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशंस में ये मुद्दा आ सकता है और इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशंस आपसे करेंट अफेयर के सेक्टर में या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्टर में पूछे जा सकते हैं। और इसलिए इसका जो एकेडमिक पार्ट था, जो एस्पेक्ट था, उसको हमने आपके सामने रखा है दो टर्म्स के जरिए, एयर इंडिया और बोइंग के जरिए। तो आज का एपिसोड यहीं समाप्त करता हूँ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साथ बने रहिए और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल। वी कैन नॉट से दैट लूजिंग फोर्स और नो ट्रस्ट। इस सिचुएशन में चैनल को मत लाइए। I request you to like, share and subscribe the channel, and many thanks to all of you. Jai Hind, Jai Bharat.